میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد جناب سہیل وڑائچ صاحب, ملک کے ممتاز صحافی ہیں, اور اگر آپ ان کے کالمز فالو کر رہے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے بڑے بہترین کالمز لکھے ہیں, اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو کروڈ ریالٹی ہے اس کو بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. وڑائچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا, اگر میں میاں نواز شریف صاحب سے شروع کر پاؤں, حکومت نہیں احتساب چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, یہ الیکشن نعرے تک تو درست ہے, میڈیا ٹاک میں بھی درست ہے. آج تو خیر پارٹی کی انٹرنل میٹنگ میں انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں سے پوچھا جو موجود تھے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, تو جواب آیا جی ہاں ہم یہی سمجھتے ہیں. جبکہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے بعد رانا صلاح اللہ صاحب نے کہا یہ میاں صاحب کی وہ ایک ذاتی سینٹیمنٹ بھی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ہے کیا اس وقت آپ کی نقطہ نظر میں؟ دیکھیں, ظاہر ہے وہ اس تجربے سے گزرے ہیں, اور جو تجربے سے گزرتا ہے اس کے دل میں یہ باتیں تو ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں, پہلے جنرل پرویز مشرف جو تھے ان کے احتساب کی کوشش ہوئی, ان کے خلاف فیصلہ ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ وہی جنرل رحیل شریف تھے جن کو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے بہت نیچے کے نمبر سے لا کے تو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا, وہی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور بالآخر جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر نکال دیا گیا. ابھی مثلا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف نواز شریف جو ہیں وہ ہیں, اور جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان بھی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ احتساب ہو سکے گا, کیونکہ ان کا ادارہ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو مجھے بظاہر ابھی اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق تو ممکن نظر نہیں آتا. البتہ یہ ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے جو خلاف فیصلہ آیا تھا اس سے جو ایک بہت آسانی سے مارشل لا لگ جاتے تھے, اس کے راستے میں ایک رکاوٹ, ایک خوف, ایک ڈر جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں مل کر بھی ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مقتدرہ کا مقابلہ کر سکیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں جو عدلیہ کے یہ جو جج ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے, جو مارشل لاؤں کے حق میں فیصلے کرتے رہے یا سیاستدانوں کے خلاف فیصلے کرتے رہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس وقت کی جو مقتدرہ تھی وہ تھی, اور وہ یہ فیصلے کرواتی تھی. اور یہ جج جو ہیں یہ بھی ان کے جو ہے آگے سے ان کو نہ نہیں کر پاتے تھے, یا ان کے ساتھ مل جاتے تھے, مراعات اٹھاتے تھے, فائدے اٹھاتے تھے, عہدے لیتے تھے. تو یہ سارا مل ملا کے ہوا. لیکن ابھی بھی جو سویلین نیریٹو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس وقت. تو بلکہ بدقسمتی منیب صاحب یہ ہے کہ جو ہم نے 90s کے اندر بھی جو سپیس تھی, یا 2000 کے بعد جو ہم نے سپیس حاصل کی تھی, وہ بھی اب تو سپیس نہیں ہے. نہ میڈیا کی اس طرح آزادی ہے, نہ جو عدلیہ کی اس طرح سے آزادی ہے, نہ ہیومن رائٹس ہیں. تو یہ ابھی تو وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے بندے عوام تو ہمیشہ پالیٹیشین کی طرف انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ بحال ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف کو اب مشکل یہ ہے کہ وہ اسی مقتدرہ کے ساتھ ہی اس وقت ان کا اتحاد ہے جس مقتدرہ سے انہیں گلے بھی ہیں, ماضی کی مقتدرہ سے, اور دوسری طرف اسی عدلیہ سے انہوں نے ریلیف لینا ہے جس کے پرانے جو لوگ ہیں ان سے ان کو شکایت ہے. تو یہ ایک جو تضاد ہے اس سے وہ کیسے نکل سکیں گے؟ اب جسٹس اعجاز الحسن صاحب جن کا انہوں نے نام لیا تھا لندن میں, وہ ابھی بھی جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں. تو یہ ساری ان کے راستے میں مشکلات ہیں. بٹ وڑائچ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی سیاست, ان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے, اس پہ مجھے آپ کا اوپینین چاہیے, کہ جو عمران خان صاحب نے کیا پچھلے 1.25 سال کے اندر, دیٹ واز آؤٹ آف دی آرڈنری. وہ بڑا غیر معمولی تھا اور ناقابل برداشت تھا, ناقابل فہم تھا. اور پھر اس کی مینیفیسٹیشن پچھلے سال کے آخر میں, اور پھر 9 مئی کو جس طرح سے ہوئی, یہ ایسی جگہ ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, اور اس سے کچھ پھر درستگی اس کی ہو نہیں سکتی. جماعت کے لیے شاید ہو جائے, عمران خان صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ذرا ریفلیکٹ کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت انوکھا جرم کر دیا ہے جس سے ان کی معافی نہیں ہو سکتی؟
नहीं, देखिए दुनिया में हर जो शख्स है ना वो डिफरेंट होता है। जो नून लीग है इसने भी अपने तजर्बात से सीखा है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तजर्बात से सीखा। आप देखें जो पीपल्स पार्टी की जो पहली मूवमेंट थी, जो भुट्टो साहब की फांसी से पहले और बाद में हुई, उसमें लोगों ने आग लगाई अपने आप को। उस ज़माने में जो है लोगों ने कोड़े खाए, शाही किले गए। उस वक़्त वो स्टेट के ख़िलाफ़ भी बात करते थे। त्यारा भी उन्हीं के जो चंद हमदर्द थे, चाहे वो एक अलग से पार्टी थी, उन्होंने त्यारा भी अगवा किया। उस वक़्त भी हम सुनते थे कि नहीं अब ये तखरीबकार हो गए हैं, अब इनके लिए माफ़ी नहीं है। हमने ये भी सुना कि जब नून लीग ने एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको सज़ाएं दे दी और ये कहा गया कि ये बड़ा जुर्म है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पब्लिक किसी लीडर को सज़ा दे देते हैं या उसको पॉलिटिक्स से त्याग दे देते हैं तो उससे जो सारा उसका वोटर है वो भी डिसएनफ्रेंचाइज हो जाता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि नवाब अकबर बुख्ती साहब जो थे वो उनको मार दिया गया, सब समझाते रहे कि ना करें। आप उसके बाद देखें कि आप बलूचिस्तान के हालात अच्छे हुए या ख़राब हुए। ठीक है, अगर आप उनको उनके साथ कोई डील कर लेते, उनको कोई रास्ता देते तो शायद बलूचिस्तान इस हद तक हालात ख़राब ना होते। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी लीडर को सज़ा देते हैं, जब भुट्टो को सज़ा दी गई तो उसके नतायज आज भी हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल कि आप देखें कि उसकी वजह से एक वोट बैंक ऐसा बन गया जो बागी था एस्टेब्लिशमेंट का, और आपने 15 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में तावान के तौर पर हुकूमत दी, 3 दफ़ा आप फेडरेशन में उनको हुकूमत दे चुके हैं। तो ऐसे काम क्यों किए जाएं कि जिससे एक कोई रूह जो है वो आप पर हुकूमत करती रहे या एक बंदा जेल में बैठा हुकूमत करता रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे मसालियत हो। खान साहब को भी मैं जब वो 9 मई नहीं हुआ था तो हम जाके ये मशवरा देते थे कि आप ये एग्रेशन छोड़ें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के डायलॉग करें, आप भी पॉलिटिशियन हैं। वो कहते थे नहीं जी ये तो चोर है, गलती की उन्होंने। फिर हमने ये भी कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, उन्होंने कहा वो नहीं मेरे से करते। तो मैंने जवाबन हंस के कहा कि आप यकतरफा शुरू कर दें। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान कोई उस तरह का मुल्क तो नहीं है कि जहाँ फ़ौज के बगैर आपको हुकूमत मिल जाए। यहाँ तो देखो मकबूलियत और कबूलियत दोनों मिल के चलते हैं। भुट्टो साहब से, नवाज शरीफ साहब से, बेनज़ीर भुट्टो साहब से, इमरान खान से, सबका देख लें कैसे एंट्री हुई है इक़्तिदार में। क्या सिर्फ मकबूलियत से हुई है? नहीं, कबूलियत भी साथ शामिल थी हर एक में। तो भाई इस असूल को क्यों मद्देनज़र नहीं रखा जाता? तो मेरी तो यही है कि भाई ये जो तलखियाँ हैं इनको कहीं तो जाके ख़त्म करना है ना। बट तलखियाँ जो है बट सर जो आर्ग्यूमेंट है सर कतर गुलामी, इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस फिर मैं ज़रा मज़ीद आगे जाना चाहूँगा, ज़रा इंतखाबात के मंजरनामे पे भी मैं चाहूँगा आप रिफ्लेक्ट करें। तो इमरान खान के लिए क्या आपको इस सिस्टम में गुंजाइश नज़र ही नहीं आती या ये वक्ती है और 2-4 साल बाद गुंजाइश निकल आएगी? जी निकल आएगी। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आपको अपने बाहर जो हैं जिसको आप कहते हैं गुंजाइश, उस गुंजाइश को बढ़ाना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसी तरह जिस तरह हम खान साहब को ये कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने सुलह पसंद लोगों को आगे लाएं। वो लोग जो उनकी तो पार्टी सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, उनका तो आज भी बयानियाँ जो ये है कि मैं फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत करूँगा। ना उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़ौज से इख्तलाफ है, ना उनका कोई दाखिला पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना उनका मीडिया पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ है। वो तो फ़ौज के साथ मिलकर मीडिया पॉलिसी चलाते रहे। वो तो जो है ना उनका ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई इख्तलाफ है, ना बलूचिस्तान की पॉलिसी पे उन्होंने कोई इख्तलाफ किया, ना इंडिया के साथ फ़ॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ किया, ना अफ़गानिस्तान पे इख्तलाफ किया। तो यही इख्तलाफात होते हैं ना सियासतदानों के। ये तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं, उनके तो पर्सनल इख्तलाफात हैं दो बंदों से। ठीक है, तो भाई सवाल ये है कि ये खान साहब को भी समझना चाहिए कि जब उनका उस अदारे से इख्तलाफ ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? तो भाई क्या उनकी मर्जी के मुताबिक ही सारे अदारे चलें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि भाई अब पाकिस्तान में आपने मिलजुल के रहना है। आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी जो देखे, 2 पार्टियां जो हैं, देखिए पीपल्स पार्टी की भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई रही, इस हद तक लड़ाई रही कि भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या लर्न किया?
बेनज़ीर भुट्टो ने बाकायदा किताब लिखी मफामत, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो हमेशा मफामत की बात करती रहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आईं। नवाज शरीफ साहब जिनको कहा जाता था कि मुहाज अराई के जो हैं वो चैम्पियन हैं, अल्टीमेटली वो भी पीपल्स पार्टी के साथ और फौज के साथ मुसालत पे आए। बिल्कुल ठीक तो है। खान साहब को भी अल्टीमेटली इसी तरफ आना होगा। बट कमिंग बैक टू द इलेक्शन, राइट साहब, आपके नज़दीक इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, आप लिख भी चुके हैं कि ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत आसान नज़र आ रही है आपको, और ऐसी सूरत हाल में बाकी जमातें जो मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नई जमातें भी हैं, उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है, और ये किस तरह की एक डोमिनेंट पार्टी विद अ सिंपल मेजॉरिटी प्लस कोलिशन पार्टनर्स, ये नज़र आ रहा है आपको? देखिए, दो सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि भाई हंग पार्लियामेंट होगी, जिसमें नून जो है वो 70 से 80 सीटें ले लेगी और पीपल्स पार्टी जो है 50-60 सीटें ले लेगी, ठीक है। तो फिर ये इन दोनों की कोलिशन बन जाएगी। लेकिन अगर जाहिर है जिस तरह से हालात पंजाब के जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, मैंने आज लिखा भी है कि अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो फिर नून को पंजाब में वॉक ओवर होगा, और वॉक ओवर हो गया तो जाहिर है उनकी फिर सिंपल मेजॉरिटी बन जाएगी। फिर वो क्यों पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि हम फ्रीडम से करें। लेकिन बहरहाल मुक्तदरा की ख्वाहिश यही है कि नून को भी अनब्राइडल्ड पावर ना मिले और एक जो चेक्स रहें। और सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन बेहतर कर चुकी है। जो उसका मुक्तदरा के साथ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे, मुझे लगता है वो भी उन्होंने रिज़ॉल्व कर लिए हैं, और वो कराची से भी 8 से 10 सीटें ले सकते हैं, और बाकी सिंध में उन्हें बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही। तो इसी तरह पंजाब में तहरीक इंसाफ अभी पता ही नहीं है कि उसका कौन कैंडिडेट होगा। तो हाँ, लेकिन एक 10% जो मैं अपने कालमों में भी लिख रहा हूँ और मैं इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि देखें, पीटीआई का खामोश वोटर तो मौजूद है, जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस चीज़ का एक खदशा मौजूद है कि इलेक्शन वाले दिन वो निकले और जो जिन रिज़ल्ट्स की हम तवक्को कर रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट रिज़ल्ट जो हैं वो आ जाए। बड़ाई साहब, टुवर्ड्स द एंड ये दवाई का आपने जिक्र किया, तो दवाई की ओवरडोज भी हो जाती है ना, कई दफ़ा ओवरडोज हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं। तो ये आपको ओवरडोज भी नज़र आ रही है होते हुए कि हो सकता है ना ओवरडोज भी हो जाए, कोई ज़्यादा ड्रिप लग जाए, लंबी लग जाए, बड़ी वाली ड्रिप लग जाए? देखें, अभी जो मेरा ख्याल है कि इस बारे में अभी फैसले जो है ना फाइनल नहीं हुए। अच्छा, कि भाई ये खाका जो है अल्टीमेटली क्या बनना है। और जाहिर है जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर एक नई सूरत हाल बनेगी। पिछला जो इलेक्शन था उसमें हमने ये देखा था कि 2018 जब शुरू हुआ तो ऐसे लगता था कि मुस्लिम लीग नून अनबीटेबल है। लेकिन जब फिर अदारों ने काम शुरू किया MNAs पर, नीचे MPAs पर, तो इलेक्शन से कोई 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अदारों की ये रिपोर्ट आ गई थी कि इतनी सीटें 126 सीटें जो हैं वो PTI की हो जाएंगी, और वो वाकई ऐसे हुआ था। तो अभी तो ये देखें ना, ये काम शुरू है, अभी ये काम ख़त्मी शक्ल इसको नहीं दी गई कि कौन किसके मुकाबले होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे। नून के तो आलमोस्ट क्लियर हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों किसको खड़ा करेगी, खड़े कर सकेगी, नहीं खड़ा कर सकेगी, खंबे होंगे या वाकई कोई जो वोटों वाले वोट होंगे, लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती, इंतखाबी खाका भी ज़ाहिर है क्लियर नहीं हो सकता।